Heavenly Father, I thank you for this blessed time and our Master that you have given us, that we all have come together in your presence, Lord, to partake from this Holy Communion, Master. Thank you, Lord, that we could partake from the Lord's table. And we thank you, Lord Jesus, for this communion, that whenever we break bread, Master, we remember you, Lord. Thank you, Abba Father. We praise you, we glorify you, and we honor your name, Master. As we begin this Sunday service today, Lord, I ask the tangible presence of the Holy Spirit to touch each and every person who are listening to this message, Master. Yes, Lord, let your name be glorified, Master. In the precious and matchless name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, I ask and pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Important things we will share. Hallelujah. Glory to God. It's an immense joy for us to share these things with you all. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. That we all know that we have been participating in the 7 days of prayer and fasting. हम सभी जानते हैं कि 7 दिन की उपवास प्रार्थना ये बहुत एक आशीष का कारण बना है. Right? Glory to God. So today is the 7th day of the fasting and prayer. आज जो है ये 7वां दिन है उपवास और प्रार्थना का. और भी हम परमेश्वर से जो है expectant है कि what all the Holy Spirit is going to speak to us even today also. Hallelujah. And all the days of our life indeed. Thank you, Lord Jesus. So सबसे पहले इन 7 दिनों में या 6 दिनों में पिछले 6 दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हमने क्या चीजें ग्रहण की. What all we received from the Lord with the instruction of the Holy Spirit. Hallelujah. तो उसकी ओर बढ़ते हैं. Let's read from few scriptures. What is the Holy Spirit telling us, right? Today being the 1st of October, the 1st of this month, and we all have come together to be in the presence of the Most High God. So what is the Holy Spirit telling us, right? So सबसे पहले जो पहला दिन था जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी, सबसे पहले दिन मुझे परमेश्वर की वचन से मैंने जिन जिन चीजों को स्वीकार किया उस चीजों को मैं बांटती हूँ. हालेलुया. सो सबसे पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने पहले दिन जब हम प्रार्थना में थे उस दिन मुझे शुभ वर्तमान मार्क का शुभ वर्तमान 16वां अध्याय इस वचन से पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की. लेट्स रीड दैट फर्स्ट. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. सबसे पहले वो पढ़ेंगे. थैंक यू जीसस. द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16. हालेलुया. राइट. यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्क्रिप्चर है. आई विल रीड इट इन इंग्लिश. Mark 16 from 15 onwards, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. हालेलुया. ये है हमारा पोर्शन. हालेलुया. ये चीज जो इस वचन में है ये हर बिलीवर का क्या है, ये एक भाग है. दैट इज अ पोर्शन ऑफ अ बिलीवर. लेट्स रीड इट इन हिंदी नाउ. थैंक यू जीसस. हालेलुया. कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं? हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू जीसस. मरकुस की किताब 16वां अध्याय. हालेलुया. थैंक यू जीसस. 15 वचन से पढ़ेंगे. फिर उसने उनसे कहा, जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो. किन लोगों को? सारी दुनिया के लोगों को. हालेलुया. परमेश्वर ने क्या कहा है हमें? सारी दुनिया के लोगों को क्या करना है? सुसमाचार देना है. हालेलुया. ये जो पहले दिन की उपवास प्रार्थना में बैठते ही समय पवित्र आत्मा की अगुवाई ने मुझे वचन से क्या दिया? मुझे एनकरेजमेंट दिया. गॉड गिव मी एन एनकरेजमेंट टू दिस वर्ड. हालेलुया. जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा. जो मुझ में विश्वास करेगा उन्हें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाए तो उनको हानि नहीं होगी.
वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सो इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने हमें ये वचन देकर हमें ये प्रॉफिटिकली हमें हमारे लाइफ पर डिक्लेरेशन करने के लिए कहा है। लेट्स ऑल से टू दिस टुगेदर। हम सभी लोग इस वचन को क्या करेंगे, हम अंगीकार करेंगे। लेट्स ऑल डिक्लेयर दिस वर्ड। व्हाट इज द वर्ड? दैट आई बीइंग अ चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, गॉड हैज गिवन मी अ मैंडेट, God has given me an agenda that I may preach the gospel to every creature and go into all the world. सारी दुनिया में जाकर क्या करना है, सुसमाचार देना है। इस वचन को अंगीकार कर कर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस वचन को अंगीकार करेंगे, then we will move ahead with the different revelations that the Lord God has given us all these 6 days of fasting and prayer. Hallelujah. So let's declare and decree this word. I, being the child of the Most High God, I have received this mandate that I have to go into all the world and preach the gospel to every creature. I believe in the Lord Jesus Christ and am baptized and am saved. Those who do not believe, they will be condemned. And these signs will follow me because I believe in the Lord Jesus Christ. I will cast out demons. I will speak in new tongues. If I take up serpent and if by chance I drink any deadly things, it will not hurt me. I will lay hands on the sick people and they will recover. Hallelujah. So this is my portion. As the Lord has given me this word, I declare and decree everyone who are watching this online also, that when they believe in this word of God, this word will manifest in their lives. Hallelujah. कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं? Amen. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Thank you for your responses. Thank you, Lord Jesus. Indeed, as you receive it, and it shall happen with you. Amen. So let's move ahead. And the second thing which the Lord showed me was a very interesting thing. Let's go to the book of Jeremiah chapter 17. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय में जाएंगे। यहाँ पर मैं quickly I will just take you through those scriptures, but not reading the entire chapter 17, but let you to just understand what is the Holy Spirit telling us today. पवित्र आत्मा हमें यिर्मयाह की किताब जो है 17वां अध्याय, इससे हमें क्या सीख मिलती है? What is the Holy Spirit asking us to concentrate today from this word, right? So we don't have so much time that we can go word by word. इसीलिए हम कुछ वचनों को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। Hallelujah, glory to God. So let's understand this word from the book of Jeremiah chapter 17. It says that cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. यहाँ पर वचन ये कहता है यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय और 5वें वचन में यहोवा ने यह कहा है, शापित है वह मनुष्य जिसने मानव की क्षमताओं को अपना आधार बनाया हुआ है, जिनका भरोसा मनुष्य की शक्ति में है तथा जो मुझसे विमुख हो चुका है। परमेश्वर आज उन लोगों से ये बात को कह रहे हैं वचन के आधार पर कि हम लोग जो ये अंत के समय में जब हम मसीह लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हमें अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पे लगाना है। कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? हालेलुया। How many of you are receiving this word? Glory to God. Thank you, Jesus. कहता है यिर्मयाह की किताब और 17वें अध्याय के 5वें वचन में, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें ये अगुवाई देती है कि इन दिनों में या इन समयों में हमें हमारा जो विजन है, हमारी आंख जो है या हमारा सोर्स जो है, ये परमेश्वर यहोवा पर लगाना है। हालेलुया। जो लोग मुझसे विमुख हो चुके हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, उनके लिए वचन है कि हम क्या करें, हमारी जो स्ट्रेंथ है या हमारा भरोसा है ये परमेश्वर पर रहे। Whose hearts departs from the Lord. For all those people who think there is no God in this world, for all those people who think that everything which is happening in around them or in their lives is happening according to their will. Some people believe in saying that, I love to do things which pleases me. I want a set of standards and rules which are done by my own will. ऐसे लोग पसंद करते हैं जीना, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ वचन ये कहता है यिर्मयाह की किताब से कि जो लोग मुझसे विमुख हो चुके हैं, या इंग्लिश में कहा गया है those who depart from me,
These people are called as cursed people. इनको शापित कहा गया है। बाइबल में वचन ये कहता है शापित है वो मनुष्य जो किसकी शक्ति पर भरोसा करता है, मनुष्य की शक्ति पर भरोसा करता है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। इसलिए यहोवा, ये परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा ने यह कहा है, वचन में ये कहा गया है, मनुष्य के द्वारा लिखा गया वचन नहीं, पर यहोवा ने यह कहा है, शापित है वह मनुष्य जिसने मानव की क्षमताओं को अपना आधार बनाया हुआ है। आज परमेश्वर की आत्मा हमें ये सीख देती है कि हम मसीह होने के नाते हमें क्या करना है, परमेश्वर की ओर हमारी नजर को रखना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर निर्भर रहना है, 100% रिलायंस ऑन गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आगे वचन की ओर बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहूदा, ये जो ट्राइब है या ये गोत्र है, इसको किस प्रकार परमेश्वर यहोवा की ओर से जो है एक पनिशमेंट मिला है। अदरवाइज वी कैन से इन हिंदी की जिनको परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनकी वचनों से क्या कर रहे हैं, चेस्टाइजमेंट दे रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं, राइट। ही वांट्स देम टू टर्न बैक टू गॉड। हालेलुया। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, उन्हें सीख देते हैं ताकि वो क्या करे, गलत कामों से मुड़कर सही राह पर चलने पाए। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा जो पिता के समान अपने बच्चों को वचनों के द्वारा क्या कर रहे हैं, सही सीख दे रहे हैं। God is here talking about Judah's sin and punishment, right? इनका पाप इतना बढ़ चुका है कि उसका जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो पढ़कर ही हमें लगता है इतना ड्रेडली है, राइट। लेट्स रीड इट इन इंग्लिश एंड देन गो टू हिंदी। Jeremiah chapter 17 verse 1. The sin of Judah is written with a pen of iron, with the point of a diamond. It is engraved on the tablet of their heart and on the horns of your altars. Right? हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। यहूदा का पाप लोहे लिखनी से लिख दिया गया है। लोह लेखनी से, लोह लेखनी मतलब आयरन पेन। आप सोच कर देखिए एक आयरन का पेन कैसे होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। और उसकी तरह पाप उनके हृदय पर लिख दिया गया, इतने कठोर है वो लोग, राइट। यहूदियों को, यहूदिया मतलब जूडा, ट्राइब ऑफ जूडा, यहूदिया का गोत्र का पाप लोहे लेखनी से लिख दिया गया है, हिरिक नोक से उनके हृदय पलट पर तथा उनकी वेदियों पर, सिंगों पर भी, मतलब डायमंड की नोक की तमान, एनग्रेव्ड ऑन द टैबलेट्स ऑफ देयर हार्ट। इतना डीप है इनका पाप। While their children remember their altars and their wooden images by the green trees of the high hills. दूसरा वचन ये कहता है, वे अपनी वेदियों तथा अशेरों का स्मरण हरे वृक्ष के नीचे ऊंचे पहाड़ियों पर उस रीति से करते हैं जिस रीति से वे अपने संतान को स्मरण करते हैं। यहाँ पर वचन ये कहता है, जिस प्रकार इन लोगों ने पेड़ों को जो आराधना की थी, पेड़ों की आराधना, वृक्षों की आराधना, अशेरों मतलब जो पेड़ होते हैं उनको पूजना, और जो है वुडन इमेजेस मतलब लकड़ियों से बनी गई मूर्तियों को पूजना। इन सारे पापों को जो यहोवा परमेश्वर स्मरण करते हुए इनको इस वचन से, यिर्मयाह नबी के मुख से इनको क्या कर रहा है, यहाँ पर वचन के द्वारा उनसे जो उनको जो है रिब्यूक कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। सो वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसीलिए ये लोग शापित कहलाते हैं क्योंकि इनके हृदय जो है परमेश्वर से दूर है, और ये मनुष्य के किए गए कार्यों पर, क्या है मनुष्य के किए गए कार्य, जो एक लकड़ी के टुकड़े से एक इमेज को तैयार कर उसको पूछता है। ये यहोवा परमेश्वर की आराधना के खिलाफ एक कार्य है। इसलिए वचन ये कहता है कि जो लोग ऐसे हैं, यहूदा का जो सिन इस प्रकार है, जिस प्रकार पेन ऑफ आयरन विद द पॉइंट ऑफ अ डायमंड, इट इज एनग्रेव्ड ऑन द टैबलेट ऑफ देयर हार्ट, मतलब एक लोहे की पेन के समान उसकी नोक जो है हीरे की तरह तराशी गई है, उस तरह से उनके हृदय पर लिखा गया है। उनके पाप इतने डीप है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसलिए ये लोग शापित कहलाते हैं जिन लोगों ने मनुष्य के बल को अपना बल समझकर उस पर भरोसा किया।
हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है 7वें अध्याय में, ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट्स इन द लॉर्ड एंड हुज होप इज इन द लॉर्ड। 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, वचन ये कहता है, हालेलुया, धन्य है वह मनुष्य जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है तथा यहोवा ही जिसका भरोसा है। हम और आप वो लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर यशुआ पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमें बाइबल कहती है कि हम धन्य हैं। हम उन शापित लोगों में नहीं जो कि एक लकड़ी की चीज को लेकर उसमें से मूर्ति बनाकर उसको पूछते हैं, या फिर पेड़ पौधों को जो है उसको परमेश्वर मानकर पूछते हैं। हम उन लोगों में से नहीं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं धन्य है वे लोग। कौन है वो लोग धन्य? वो धन्य है जिन्होंने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है तथा यहोवा ही जिसका भरोसा है। सिर्फ भरोसा रखना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर को अपना भरोसा मानना। हालेलुया। Let's read it in English again, 8th verse. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Hallelujah. ये आशीषित वाक्य आज ये अक्टूबर के फर्स्ट दिन, महीने के पहले दिन, परमेश्वर के सेविकाएं होने के नाते मैं रिलीज करती हूँ कि परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, या ये हुआ परमेश्वर को जिसने अपना शरण स्थान माना है, उसके लिए ये आशीष का साल होने वाला है। नॉट ओनली दिस मंथ बट दिस ईयर also is going to be a year of blessing. As you believe, you shall receive it. Let's declare it in Hindi. वह व्यक्ति जल के निकट रोपित वृक्ष के सदृश है, जो जल प्रवाह की ओर अपनी जड़ें फैलाता जाता है। हालेलुया। ग्रीष्मकाल का उस पर कोई भी भय नहीं होता। उसकी पत्तियां सदैव हरी ही रहेंगी। आकार उसके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, और इसमें समय पर फल लगाना बंद नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि दुनिया में कितना जो है केओस है, एक डिस्टर्बेंस है, एक कंफ्यूजन है, और एक तरह का जो है दे आर डिसअपॉइंटेड एंड दे हैव नो होप। इस समय पर परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हमें ये आशीष का वचन दे रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट दिस वर्ड इज फॉर मी? हालेलुया। थैंक यू जीसस कि ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। इस समय पर जब लोग इतने होपलेस सिचुएशन में है, या उनको पता नहीं कि वो किस ओर देखे, उस समय पर पवित्र आत्मा हमें ये इतना उत्तेजित वचन देकर हमें क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। The word of God is building our lives, showing us and teaching us. Hallelujah. It is showing and teaching us how we should rely on God completely. Hallelujah. ये रिसेशन का दौर है जहां पर इकोनॉमिक जो है ये डाउनफॉल की तरफ है। We all know whenever we read news or we listen to the things happening around us, we understand how the economics of the world is changing, how the climatic conditions in the world is changing. Nothing is normal, isn't it? जो ऋतु का जो एक प्रोसेस है या सीजन है, ये सब बदल रहा है। तब हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा किस ओर बढ़ा रहे हैं। इन सारे डिस्टर्बेंस के मध्य में भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो व्यक्ति जल के निकट, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर खुद है, वो किस प्रकार होने वाला है? वो जल के निकट रोपित वृक्ष के समान होने वाला है। इसका मतलब हमें कभी भी जो है पानी की कमतरता नहीं हो सकती। पानी किसको दर्शाता है? पानी परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेट मी डिक्लेयर दिस वर्ड वंस अगेन in English. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its roots by the river. जो अपने तनों को जो है गहराई से जो है क्या करता है? विस्तार करता है। And will not fear when heat comes. जो एक भय के समान कोई कार्य उनकी जिंदगी की ओर बढ़ता भी है, तो इन चीजों को वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन से उसको क्या करते हैं? हैंडल कर सकते हैं। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे, वह व्यक्ति जल के निकट रोपित वृक्ष के सदृश है,
जो जल प्रवाह की ओर अपनी जड़ें फैलाता जाता है, परमेश्वर पे जो भरोसा रखता है, परमेश्वर यहोवा पे जो भरोसा रखता है, जो यीशु मसीह की संतान कहलाता है, वह अपने जड़ों को इस सीजन में, इस ऋतु में फैलाने वाला है। क्या ये वचन मैंने लिखा है? क्या ये वचन को मैंने ढूंढा है? नहीं, ये वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे दिया गया है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई सो कॉन्फिडेंटली आई एम रिलीजिंग दिस वर्ड. Glory to God. Thank you, Jesus. The word of God says that you are going to spread your roots because you're planted by the riverside and you will never lack water. The word of God is going to nourish you, prepare you, and build you for the coming time ahead. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. जो जल प्रवाह की ओर अपनी जड़ें फैलाता जाता है, ग्रीष्मकाल मतलब द टाइम ऑफ हीट, गर्मी का समय। अगर एक पेड़ को अगर एक गर्मी की जगह पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, मर जाएगा। उसी प्रकार जो पीड़ाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो एक गर्मी के समान लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, उस समय पर भी जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसकी क्या स्थिति होने वाली है, हम वचन में पढ़ेंगे। ग्रीष्मकाल का उस पर कोई भय नहीं होगा। हालेलुया। उसकी पंक्तियां सदैव हरी ही रहेगी, अकाल उसके लिए चिंता का विषय नहीं होगा और इसमें समय पर फल लगाना बंद नहीं होगा। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा रखते हैं, समय का या स्थिति का या सर्कमस्टेंस का उन पर कोई भी असर नहीं होगा। हाल बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, the situation around them, the circumstances around them, the hopelessness situation which the world is going through is not going to affect the children of God, because they are going to be like the trees planted by the riverside and they are going to spread their roots deeper, nor the heat will affect them, and they are going to be a fruit bearing tree. ये लोग जो है फलदायी पेड़ के समान जो है परमेश्वर यहोवा के नाम की साक्षी के लिए खड़े होने वाले हैं। कौन लोग हैं ये जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। वर्ड 10वें अध्याय से पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय 10वां वचन। I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. As a partridge that broods but does not hatch, so is he who gets riches but not by right. It will leave him in the midst of his days, and at his hand he will be a fool. A glorious high throne from the beginning is the place of a sanctuary, O Lord, the hope of Israel. All who forsake you shall be ashamed. Those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Let's read this in Hindi. Hallelujah, glory to God. मैं यहोवा हृदय की विवेचना करता हूँ, मैं मस्तिष्क का प्रशिक्षण करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को उसके आचरण के अनुरूप प्रतिफल दूं, उसके द्वारा किए कार्यों के परिणाम के अनुरूप। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो लोग किस प्रकार कार्य करते हैं, इनफैक्ट जिस प्रकार का बीज आप बोते हैं उसी प्रकार का फल पाओगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर यहोवा हमारे हृदय के अनुसार हमें जांचते हैं। कौन हमारे हृदय को चेक करता है? हमारे विचारों को, हमारे मस्तिष्क को। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर खुद इन सारी चीज को जांचते हैं। कौन जांचता है हमारे हृदय के संकल्प को? कौन जांचता है हमारे मस्तिष्क के विचारों को? परमेश्वर खुद इन चीजों को जांचता है। हालेलुया। और उसके अनुसार हमें क्या करता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। जिस प्रकार तितर उन अंडों को सेती है जो उसके द्वारा दिए हुई नहीं होती। तितर ये एक ऐसा पक्षी है जो दूसरे के पक्षी के द्वारा दिए गए अंडों के ऊपर जो बैठकर उनको जो है हैच करने की प्रोसेस करता है। पर यहाँ पर परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा इस एग्जाम्पल को किस लिए दिया है? आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार तीतर उन अंडों को सेती है जो उसके द्वारा दी हुई नहीं होती, उस व्यक्ति की स्थिति भी इसी तीतर की सदृश होती है, जो धन जमा तो कर लेता है किंतु अनुचित रीति से ऐसा धन असमय
ही उसके हाथ से निकल जाएगा तथा अपने जीवन के अंत में वह स्वयं मूर्ख प्रमाणित हो जाएगा। वचन ये कहता है कि जो लोग तीतर के समान क्या करते हैं, धन तो इकट्ठा कर लेते हैं पर गलत तरीके से, उनकी अवस्था जो है तीतर के सदृश। क्यों ये एग्जाम्पल दिया गया है कि दूसरों के जो अंडों पर जो है सेती है, हैच करने की प्रोसेस करती है, पर उसके खुद के अंडे नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जो तीतर के समान सदृश होता है, जो धन जमा कर लेता है जो उसका नहीं होता, अनुचित रीति से ये कार्य को करता है, पर ऐसा समय आएगा कि ये सारा चीज जो है असमय ही उसके हाथ से निकल जाएगा तथा अपने जीवन के अंत में वह स्वयं को मूर्ख प्रमाणित कर लेगा। हालेलुया। वचन ये कहता है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमें क्या सीख मिलती है? जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर, हालेलुया। सो वचन ये कहता है कि लेट्स रीड इट फ्रॉम once again, yeah, 11th verse, thank you lord jesus। जिस प्रकार तीतर उन अंडों को सेती है जो उसके द्वारा दिए हुए नहीं होते, उस व्यक्ति की स्थिति भी इस तीतर के सदृश होती है जो धन जमा तो कर लेता है किंतु अनुचित रीति से ऐसा धन असमय ही उसके हाथ से निकल जाएगा। अनुचित रीति से धन जमा करना असमय ही ऐसे लोगों के हाथ से निकल जाएगा जो नीतिमान नहीं है। अंत में उनके जीवन में अपने आप को स्वयं मूर्ख प्रमाणित किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन ये कहता है जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखता, वो एक तीतर के समान दूसरों के अंडों को अपना समझकर अनीतिमान तरीके से धन को प्राप्त कर कर एक जिंदगी जीने की जो एक डिसीटफुल एक्ट है उसको किए जा रहा है, पर अंत में वो क्या कहलाएगा? मूर्ख कहलाएगा। हालेलुया। 12वें वचन को पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द वर्ड अगेन। हालेलुया। लेट्स रीड इट इन हिंदी नाउ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रारंभ ही से उच्च स्थल पर प्रतिष्ठा आपका वैभवशाली सिंहासन हमारा आश्रय रहा है। हालेलुया। प्रारंभ से ही उच्च स्थल पर प्रतिष्ठा आपका वैभवशाली सिंहासन हमारा आश्रय रहा है। हालेलुया। यहोवा आप में ही निहित है इज़राइल की आशा। लज्जित उन्हें होना पड़ेगा जिन्होंने आपका परित्याग किया है। हालेलुया। लज्जित उन्हें होना पड़ेगा जिन्होंने आपका परित्याग किया है। जो आपसे विमुख होते हैं उनका नामांकन उनमें होगा जो अधोलोक के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवित जल के बहने झरने का अर्थात यहोवा का ही परित्याग कर दिया है। हालेलुया। लेट्स रीड दिस वंस अगेन। 12 से फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रारंभ से ही उच्च स्थल पर प्रतिष्ठा आपका वैभवशाली सिंहासन हमारा आश्रय रहा है। यहोवा आप में ही निहित है इज़राइल की आशा। लज्जित उन्हें होना पड़ेगा जिन्होंने आपका परित्याग किया है। जो आपसे विमुख होते हैं उनका नामांकन उनमें होगा जो अधोलोक के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवित जल के बहते झरने का अर्थात यहोवा का ही परित्याग कर दिया है। हालेलुया। यही वचन हमने इंग्लिश में पढ़ा। यहाँ पर वचन ये कहता है, ग्लोरियस हाई थ्रोन फ्रॉम द बिगिनिंग इज द प्लेस ऑफ अ सैंक्चुअरी, ओ लॉर्ड द होप ऑफ इज़राइल, ऑल हु forsake you shall be ashamed। जिसने परमेश्वर यहोवा का परित्याग किया है वो लज्जित होने वाले हैं, क्योंकि वो अपने आप को अधोलोक के लिए तैयार करते हैं। They shall be written in the earth because they have forsaken the Lord, the fountain of living water। कौन है ये? क्योंकि उन्होंने जीवित जल के बहते झरने का अर्थात यहोवा का ही परित्याग कर दिया है। जीवित जल जो परमेश्वर यीशु मसीह है उसका परित्याग किया है। वो क्या होने वाले हैं? इस समय पर लज्जित होने वाले हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। 14th वर्स ये कहता है, हील मी ओ लॉर्ड एंड आई विल बी हील्ड, सेव मी एंड आई शैल बी सेव्ड, फॉर यू आर माय प्रेज। हालेलुया। यहोवा यदि आप मुझे सौख्य प्रदान करें तो मैं वास्तव में ही निरोगी हो जाऊंगा। यदि आप मेरी रक्षा करें तो मैं सुरक्षित ही रहूंगा, कारण आप ही मेरे स्तवन का विषय हो। हालेलुया। ये वचन हमें क्या सीख देता है कि परमेश्वर अगर हमें
हील करे तो हम सच में ही निरोगी रहने वाले हैं। अगर परमेश्वर हमें बचाए, indeed we will be saved because you alone are my praise। स्तवन का विषय कौन है आज? स्तवन और स्तुति और आराधना का विषय स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जी। यहोवा पर भरोसा रखता है, परमेश्वर यहोवा खुद उसकी आराधना का कारण बन जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। So once again we declare this word, heal me O Lord and I shall be healed, save me and I shall be saved, for you are my praise। Hallelujah, thank you precious master, glory to God। Let's move further and understand the word of God। आगे चलेंगे वचन की ओर। परमेश्वर ने एक और वचन से परमेश्वर ने मुझे दूसरे दिन को जो है अगुवाई दी। ये पहले दिन का ही वचन था। This was all about the first day that we received during the prayer। योएल की किताब दूसरा अध्याय 16वां वचन, द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 16। हालेलुया, 2 वर्स 16। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन को एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओके, थैंक यू मास्टर। Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babies। यहाँ पर वचन क्या कहता है, हम एक बार फिर से इसे हिंदी में पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार तैयार होने के लिए परमेश्वर की वचन से क्या करता है, सीख देता है। हालेलुया, योएल की किताब दूसरा अध्याय 16वां वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस, लोगों को जमा करो, सबको पवित्र करो, अगुवे को एक साथ लाओ, बच्चों और दूध पीते छोटे बच्चों को इकट्ठा करो, दूल्हा अपने कमरे को और दुल्हन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आए। क्या कहता है ये वचन? योएल की अध्याय दूसरा, योएल की किताब दूसरा अध्याय 16वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें आज किस प्रकार तैयार होने के लिए कह रहा है। गैदर द पीपल, सभी को इकट्ठा करो, सैंक्टिफाई द कांग्रीगेशन, पवित्र करो, इन सारे जन को इकट्ठा कर कर उन्हें सैंक्टिफाई करो। क्या करो? पवित्र करो। यहाँ पर जो है अगुवाए, जो लीडर्स है, एल्डर्स है, जो बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे भी है, यहाँ तक कि जो यहाँ पर वचन ये कह रहा है दूल्हा और दुल्हन भी अपने कमरे को छोड़कर बाहर आए। इसका मतलब ये है परमेश्वर के पवित्रता के लिए कोई भी यहाँ पर exempted नहीं है। None of them are exempted to get themselves sanctified। Hallelujah। यहाँ पर वचन ये कहता है gather the congregation, assemble them and sanctify them। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो छूट जाए। हालेलुया, वचन ये कहता है सभी लोगों को अपने आप को क्या करना है, शुद्धिकरण के इस प्रोसेस को जो है अलाउ करना है। हालेलुया, none of them are exempted। Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babies, let the bridegroom go out from his chamber and the bride from her dressing room। हालेलुया, ये इसलिए कहा गया है कि ये ऐसा समय है जहां पर हर एक परमेश्वर के जन जो है पवित्रता की एक प्रोसेस से होकर गुजरने वाला है। God is going to purify, sanctify his children during this season। हालेलुया, इसलिए यहाँ पर किसी को भी छूट नहीं है। लोगों को जमा करो, सभी को पवित्र करो। किस प्रकार हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं? वचन ये कहता है, जिस प्रकार यिर्मयाह की किताब 17वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर यहोवा को ही अपना भरोसा समझता है, वो एक पेड़ के समान होगा जो पानी की एक रिवर के नेक्स्ट जो है वो अपने आप को ग्रो होता देखेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पर क्या करता है? 100% रिलायंस करता है। उन जन के लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो, सैंक्टिफाई करो। सी योरसेल्फ दैट यू आर सैंक्टिफाइड। हालेलुया, एंड दिस इज अ टाइम एंड पीरियड वेयर गॉड इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दैट दे आर सैंक्टिफाइड एंड दे आर प्यूरिफाइड, so that they may stand strong for the coming times ahead। Hallelujah, glory to God। Let's go to the next word। Let's read from the book of Ruth। रुथ की किताब दूसरे अध्याय से हम पढ़ेंगे, the book of Ruth chapter 2। Hallelujah, open your Bible to the book of Ruth chapter 2। Hallelujah, thank you Lord Jesus।
यहाँ पर हम इस वचन को पढ़ते हैं। ये वचन ये कहता है, रूत का जो दूसरा अध्याय और 5वें वचन में यहाँ पर लिखा गया है, 4थे वचन से पढ़ेंगे। Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless you. Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, whose young woman is this? So the servant who was in charge of the reapers answered and said, it is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. And she said, please let me glean and gather after the reapers among the sheep. So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. जो लोग रूत की किताब को नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि रूत की किताब जो है हमें ये दर्शाता है किस प्रकार जो कलीसिया है वो अपने वधु के लिए तैयार हो जाए। बोआज ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। आगे चल के हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे 4वें अध्याय से। कुछ ही समय बाद जब बोआज बेथलेहम नगर से वह खेत में आया, उन्होंने फसल कटवाने वालों को नमस्कार करते हुए उनसे कहा, यहोवा आपके साथ रहे। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, यहोवा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। बोआज ने फसल काटने वालों के प्रभारी से पूछा, यह युवती कौन है? फसल काटने वाले ने प्रभारी ने उत्तर दिया, यह वह मोआबी युवती है जो मोआब देश से नवमी के साथ आई है। उसने मुझसे अनुमति मांगी थी मुझे काटने वालों के पीछे पीछे पुलियों के बीच से गिरे हुए सिला इकट्ठा करने दे। यह सुबह से आई हुई है और थोड़े से आराम के अलावा तब से अब तक काम ही कर रही है। क्या वचन कह रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई से? जिस प्रकार जो है बोआज ने इस स्त्री जो है रूत को जो कार्य करते हुए, जो गिरे हुए जो ग्रेन्स है उसको इकट्ठा करते हुए देखा, यहाँ पर ये दर्शाता है कि किस प्रकार जो है रूत ने बोआज के फेवर को पाया, उस प्रकार ही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के फेवर को रिसीव करे। यहाँ पर बहुत एक सुंदर वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे जो कहा गया है कि बोआज ने पूछा कि ये युवती कौन है। हालेलुया। बोआज ने फसल काटने वालों के प्रभारी से पूछा, यह युवती कौन है? इसी प्रकार परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज हमसे कह रही है कि परमेश्वर आज अपने बच्चों को जो क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं। His eyes is upon us. He's checking. Who is this my child? Hallelujah. So today God is interfering in your problems. The way Boaz's eyes fell on Ruth among the midst of people working in the field when she was gleaning, that time the eyes of Boaz fell on Ruth and he asked the person in charge there, who is this woman? So shall it be with the children of God, that the eyes of God will locate you, beloved. That the eyes of God may locate you in his mercy. Hallelujah. Glory to God. Today the word of God says the way Boaz located Ruth and asked the person in charge, who is this woman? So shall the Holy Spirit locate you in your situation and circumstances. When we read the book of Ruth, we understand that what situation she went through. She humbled herself, and from morning till the evening without taking rest, she was gleaning there. Hallelujah. Similarly, the word of the Lord today is speaking to each one of us, that all those who have been waiting upon the Lord from morning till evening, their eyes is upon the Lord. Today the Holy Spirit is speaking to such people that the way Boaz's eyes looked upon to Ruth, so shall you all receive favor today. And as Boaz inquired, who is this woman, to the person in charge, today God is interfering in your issues personally, so that you no longer will be disfavored, but you will be receiving uncharted favor in your lives, beloved. Hallelujah. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर नजर लगाए हैं, जो परमेश्वर यहोवा को अपना भरोसा समझते हैं, उन लोगों पर परमेश्वर की नजर क्या है, टिकी हुई है। जिस प्रकार बोआज ने रुत को यहाँ पर इंक्वायरी की, ये व्यक्ति कौन है, इसी प्रकार पवित्र आत्मा आपके हर परिस्थितियों में, आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हुए आपको एक अलौकिक आशीष के साथ भरना चाहते हैं।
कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. This shall be a season for you all that you may receive immense favor from the eyes of God. Hallelujah. God will raise up such people to whom you will be connected divinely, that they will be a source of favor to you all. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Let's move further. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. There are many more things which I want to share with you all, but the list goes on and on and on. So I don't want to conclude it today itself. Let's do it a part 2 session. कितने लोग चाहते हैं कि इसका part 2 session हम आगे सुने? Hallelujah. The coming week we will understand more about very prophetic things which the Lord has led in our hearts. For now, let's read very blessed scripture, yes, which the Lord gave me yesterday night, and indeed it covers entire thing, right? Hallelujah. Let's go to the book of First Peter chapter 5 verse 7. Hallelujah. कल शाम को 6वें दिन की उपवास प्रार्थना के संध्या के समय पर ये वचन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई से दिया. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Let me take it in Hindi also. First Peter 5:7. पहला पेत्र 5वां अध्याय 7वां वचन. Yeah. Okay. Thank you, Lord Jesus. It says that casting all your care upon him, for he cares for you. Evening, when the time of evening came, when I was praying, मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतने सारे वचन दिए इस पूरे उपवास प्रार्थना के दरमियान. मेरे मन में काफी कुछ चल रहा था. मैं काफी चीजों के बारे में मनन कर रही थी. उस समय पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे ये वचन मिला, कास्ट योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू. हमें क्या करना है? हिंदी में पढ़ेंगे. अपनी सारी चिंता का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है. हालेलुया. जिस प्रकार बोआज ने जो है रुत की परिस्थिति में इंटरफेयर किया, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें क्या करना है? हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर यहोवा के हाथों में समर्पित करना है. हालेलुया. हालेलुया. दिस वर्ड टुडे. Thank you, Master. Glory to God. Yes, let's declare and decree this word, casting all your care upon him, for he cares for you. क्या करना है हमें? Casting all our cares. Hallelujah. Casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on him, for he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Hallelujah. क्या कहता है परमेश्वर का वचन? I'll put it on the chat box for you all to read it in English. Thank you, Lord Jesus. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें हमारे सारे जो केयर्स है उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है. It says in हिंदी, अपनी सारी चिंता का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है. अब सोच कर देखिए किस प्रकार बोआज ने जो है रुत की चिंताओं को समझने के लिए परमेश्वर ने बोआज को तैयार किया ताकि उसकी नजर उस पर आए. उसी प्रकार पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ परमेश्वर की नजर आज आप पर ठहरी हुई है. इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, कास्टिंग ऑल योर केयर्स, all your anxieties, hallelujah, for all your concerns once and for all on him, for he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Hallelujah. This wonderful scriptures, Master. Thank you for giving us this wonderful word, Lord. Thank you for preparing us for the coming time, Master. Thank you, Lord Jesus, for preparing us, Master. Thank you, Lord, for giving us 1 Peter 5:7, Master. Thank you, Lord, that you're preparing us for something very supernatural. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. So let's all look upon to the Lord in prayer. Thank you, wonderful Father. Master, I thank you for all these 7 days of fasting and prayer, Master, that the Holy Spirit has filled our plate with such a word which is nourishing us, preparing us, and building us, Master. Lord, I thank you for all the scriptures that you gave us as a rhema word during this fasting and prayer, Master. Lord, we look upon to you, Master. And as the word of God says in Jeremiah 17, cursed are those people who trust in their own strength, but we, your children,
who believe in the Lord Jesus Christ will be like the trees planted by the riverside. Abba Father, locate us in your mercy. Locate us in your mercy, Lord. As Boaz's eyes fell on Ruth and he questioned, who is this woman? This shall be our testimony, Master, that the Lord is questioning, this is my daughter, and the Lord is interfering in our personal life and giving us that uncharted favor, Master. As Ruth received favor in the sight of Boaz, so shall your children receive uncharted favor in your eyes, Master. Yes, Lord Father, I thank you for this word, Master, which strengthens us and builds us, that we may cast upon all our cares and worries on you, Master, because you alone, Master, can give us that comfort, that protection, that security, that assurance, Master, that we may completely and 100% rely on you, Lord Father. Thank you, Lord. As we begin this month of October, Master, I speak, Lord Father, this blessing on every person who's listening to my voice on this online meeting, Master, that their lives may not be the same, Lord Father. As we begin with Mark 16, verse 15 onwards, Master. Yes, Lord, as you have commanded us to go to every corner of the world and preach the gospel, Master, to every creature, Lord Father. Yes, Master, all those who are baptized, Lord Father. Yes, Master, and all those who are not baptized, prepare them, Master, that their hearts may be receptive to the word of God and they may surrender to the Lord Jesus Christ and receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Yes, precious Master. I also pray, Lord Father, that you will train us and prepare us and sanctify us according to the book of Joel, chapter 2, verse 16, Master. Yes, Lord, this is a time and season of purification, sanctification. The Holy Spirit calls and tells and encourages us today through this word. The assembly of the Lord should come together. None of them are exempted. Everyone needs to come together with the unction that the Lord God has given us, that this generation may be sanctified and cleansed. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus, for this prophetic word and declaration that you gave us during this season of fasting and prayer. In the precious and matchless name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, we ask and pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. God bless you. We will have a part 2 of this session, which is going to be more prophetic and with more powerful words from the mouth of the Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. God bless you. Have a wonderful week ahead, and we will meet in faith to listen for what the Lord has kept for us from the Bible. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. God bless you.